Okay, let's do the third number question. We have to find the multiplicative inverse of this one. Okay, at first we see that negative exponent থাকিলে কি কৰে negative exponent থাকিলে আমাৰ বেস টু রেসিপ্রোকেল করে দিয়ে পাওয়ার টু পজিটিভ হয়ে যায় ফার্স্ট স্টেপ 16/81 and whole to the power 3/4 because it is minus 3/4 it becomes plus 3/4 base to reciprocal করলে power to positive হয়ে যায় now 16 and 81 if we know what is prime number and composite number আমি জানিম যে 16 and 81 are composite numbers now what is prime number and what is composite number let us say 12 if we think in whose multiplication table we will get 12 as an answer car multiplication table of 12 as an answer pump we will start from 1 12 are 12 next 2 6 are 12 next 3 4 are 12 ইয়াৰ পিছত পাব পাৰোঁ 4 3 তো একেটা কথা 3 4 4 3 ইয়াৰ পিছত আকৌ পাম 6 2 বাট 2 6 6 2 একেটা কথা সো নিলিখোঁ দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰি এটা আনসাৰ পাওঁ 1 into 12 is 12 2 into 6 is 12 3 into 4 is 12 তো যিকেইটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ those numbers which are getting multiplied are called factors of this answer these two numbers are called factors of this number these two numbers are called factors of this 12 1 and 12 are called factors of this 12 so factors of 12 are 1 2 3 4 6 12 these are called factors of 12 because when we multiply these numbers we get answer 12 okay now let us see for 15 1 15 is 15 2 के टेबल में है नहीं 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 3 into 5 and that's it 15 और फैक्टर होबो 1 3 5 15 these are factors of 15 we see that number of factors are more than 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 15 has 4 factors 12 has 6 factors but there are some numbers like हमको कुछ ऐसे नंबर्स भी मिलेंगे जैसे कि 13 11 17 5 3 and what they have in common इनमें ऐसा क्या खास है जो ऐसा नहीं है इनमें ऐसा है कि 13 माने 113 ही मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा 11 माने 111 ही मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा 17 माने 117 ही मिलेगा और कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा 5 माने 15 ही मिलेगा 3 माने 13 ही मिलेगा वैसे ही 2 माने 12 ही मिलेगा और कहीं पे भी तुमको ये 2 आंसर नहीं मिलेगा जैसे कि 12 हम 1 के टेबल में भी है 2 के टेबल में भी है 3 के टेबल में भी है 4 के टेबल में भी है 6 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में भी है 12 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में भी है 15 भी 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में है 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में है लेकिन इन सब में देखो नीचे वाले जो है उनमें क्या कॉमन है कि 13 माने 13 का सिर्फ 2 ही फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ 11 का सिर्फ 2 ही फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ 17 का सिर्फ 2 ही फैक्टर 1 एंड 17 एक तो 1 हो गया दूसरा 17 खुद हो गया खुद का मतलब अंग्रेजी में इटसेल्फ 5 का फैक्टर भी 2 है 1 and 5 itself 3 का फैक्टर भी 2 है 1 and 3 itself 2 का फैक्टर्स भी 2 है 1 and 2 itself तो ये जो सब नंबर्स है ना 2 13 11 17 5 3 वगैरह वगैरह इन सब नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि इनका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं कौन कौन से वाले एक तो ये खुद itself and 1 those numbers which have only and exactly 2 factors those numbers which have only and exactly 2 factors 1 and itself are called prime numbers जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो और कौन कौन से एक और खुद उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं बाकी सबको क्या बोलेंगे इन सबको अगर प्राइम नंबर बोल दे बाकी सबको क्या बोल लेंगे तो दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे कि ये 4 फैक्टर्स है इसमें 6 फैक्टर्स है 12 का 6 फैक्टर्स 15 का 4 फैक्टर्स जैसे कि 9 का देख लो 9 1 9 9 3 3 9
तो 9 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 3 और 9। 3 दो बार आ रहा है, मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 9 के कितने फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स। तो जिन नंबरों के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उनको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, और जिन नंबरों के केवल ओनली हैज 2 फैक्टर्स, 1 and number itself, these type of numbers are called prime numbers. Prime number starts from 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and goes on. And composite numbers are this type of 12, 15. Okay. Link to की क्या लिंक है इस चैप्टर्स के साथ? तो we know that 16 and 81 are not prime numbers. These two are composite numbers. तो इनका एक चीज करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 और 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, ठीक है। वो कैसे करते हैं? 16 को यहाँ रख के डिवाइड करना होता है, किससे? प्राइम नंबर से। सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन? 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 4 2 मिल गए। तो 16 को हम 2 to the power 4 करके लिख सकते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the power 4 आ जाएगा। वैसे ही 81 को क्या लिख सकते हैं? 81 को हम लिख सकते हैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। कैसे? 81 माने, अब देखो 81 है, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 81 है, इट इज ऑड नंबर, सो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। एंड व्हाट इज द प्राइम नंबर आफ्टर 2? इट्स 3। एंड हाउ कैन वी चेक दैट 81 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? 81 को 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमको 81 का एक 3 का एक रूल है। क्या है कि जो नंबर बड़ा वाला नंबर दिया हुआ है उसका तुम डिजिट्स को ऐड करके देख लो। 8 + 1 क्या होता है? 9 होता है। वो 9 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है क्या? ये जो डिजिट्स को ऐड करके सम मिला हमको 9, वो 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है क्या? ऑब्वियसली आता है। अगर बड़े वाले नंबर का डिजिट्स को सम करके जो सम मिलता है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये बड़ा वाला नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 से मान के चलो 8 को तो नहीं जाएगा, 3 2 6 कर लेते हैं। तो माइंड में करना पड़ता है 8 से 6 को माइनस, क्योंकि 3 2 6 मिला है 8 से 6 को माइनस किया, 2 रह गया, और 2 के साथ 1 को लिख लेंगे, 21 बन गया। 3 कितना 21 होता है? 3 7 21 होता है, ठीक है। और ये तो पता ही है, फिर से 3 से कर लेंगे, 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है। इसी को बोलते हैं, ऐसा टाइप का करने को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। 81 का क्या निकल गया? 3 into 3 into 3 into 3, ये हो गया 3 to the power 4। अजय बिल्कुल सही। अब क्या करोगे? 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 अगर 16 माने 2 to the power 4 निकल ही गया है, 16 माने 2 to the power 4 अगर निकल ही गया है तो क्या कर सकते हैं? 16 की जगह हम 2 to the power 4 बिठा सकते हैं। कैसे? 16 की जगह 2 to the power 4 बिठा दिया, 81 की जगह 3 to the power 4 बैठ गया। अच्छी बात है, सही है। और एज ए होल में पावर पहले से 3/4 आ ही रहा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो a/b होल टू द पावर m, इसके पास भी a आ जाएगा, इसके पास भी a आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 होल टू द पावर 3/4, 3 to the power 4 होल टू द पावर 3/4। अब देखो उस शायद एक रूल लिखवाना रह गया था मेरा, वो रूल है ये कि अगर समथिंग टू द पावर है उसके ऊपर भी पावर है तो ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैसे? ऐसे, जैसे कि ये ले लो, कौन सा वाला रूल होगा? ये वाला, a to the power m और होल टू द पावर n है, ये a to the power m into n हो जाएगा, ठीक है। a to the power m होल टू द पावर n है, a to the power m into n हो जाएगा। ये a to the power m है, होल टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 into 3/4। नीचे भी 3 to the power 4 into 3/4। अब फ्रैक्शन का पता ही होता है, ये फ्रैक्शन में 4 कैंसिल चला जाएगा, क्योंकि ये 4 न्यूमरेटर में है, ये 4 डिनोमिनेटर में है। जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कैंसिल जा पाए तो कर लेना चाहिए। इसमें 4 कैंसिल चला जाएगा, इसमें 2 to the power 3 रहेगा, इसमें 3 to the power 3 रहेगा। आंसर आएगा हम लोग के पास 8/27।
ये क्या आया, ये आया हमको ये वाला जो दिया हुआ है इसका सिंप्लीफाई करके लास्ट में आंसर ये आया। लेकिन हमको क्या निकालने को बोला गया था, हमको बोला गया था कि इसका रेसिप्रोकल निकालो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, ये ही मतलब ये निकला। ये सिंप्लीफाई करते 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 ये निकल गया। तो माने हमको एक्चुअली इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, मतलब इसी का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है। ये सिंप्लीफाई करते करते ही ये निकला ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना और यार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उलिबा एकेटा कथाय। तो आमी लिखिब लागिब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 81/16 whole to the power minus 3/4 equals to 8/27 will be 27/8। यार मल्टीप्लिकेटिव, यार डायरेक्ट কেনেকে মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স উলিয়াবলে দিগদাৰি হৈ যায়, কিন্তু ইয়াৰটো আৰামছে পাৰি। এনে কৰিলোঁ হৈ যাব 27/8 হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি সিম্পলিফাই কৰিলোঁ, আমাৰ কাৰণটোৱে হৈছে যে আমি ইজিলি মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্সটো উলিয়াব পাৰোঁ। ওকে, সেকেন্ড क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस थिंग। पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढ लेंगे हम, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास -3/2 है, 2/3 हो जाएगा और उसके ऊपर -4 की जगह 4 आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ले लिया ना। -4 जगह 4 আহিব কাৰণ আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলোঁ কি বেছটো ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিয়াৰ কাৰণে ওপৰৰ নেগেটিভ এক্সপোনেণ্টটো পজিটিভ হৈ যাব আৰু ওপৰ হোল টু দি পাৱাৰ 1/2 আছে, ঠিক আছে। এটা কথা এটা আমি কি ৰুল এটা পাইছিলোঁ, আমি ৰুল এটা পাইছিলোঁ যে a to the power m to the power n, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n। কি পাম এতিয়া -2/3 4 into 1/2, कहाँ से, यहाँ से A2 फॉर्मूला यूज करी पेलाई, ठीक है। 4 is in numerator, 2 is in the denominator, 2 1s are 2, 2 2s are 4, we will get -2/3 whole to the power 2। We know that माइनस उसके ऊपर इवन पावर, माइनस उसके ऊपर इवन पावर, आंसर हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा, ठीक है। 2/3 हो गया, ऊपर होल टू दी पावर 2 हो गया, ठीक है। अब देख लो भैया ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 2 के ऊपर 2 आ जाएगा, 3 के ऊपर 2 आ जाएगा, a/b होल टू दी पावर m, a/b होल टू दी पावर m, 2 के ऊपर भी 2 पावर आ जाएगा, 3 के ऊपर भी 3 पावर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, सही है। तो इसको सिंप्लीफाई करते 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 4/9 निकल गया। लेकिन ये नहीं निकालना था, ये क्या निकालना था हमको, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसको सिंप्लीफाई करके ये मिला, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम ही ठीक होगा। इसका निकाल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डायरेक्ट कैसे निकालोगे भैया, बहुत टफ हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते 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 इसका निकल गया, तो ये निकला। तो इस 4/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चुटकी में निकल जाएगा, क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव, अरे भैया इनवर्स ऑफ 4/9 विल बी 9/4। आंसर इज 9/4। और देख लेना कि सिंप्लीफाई करने को नहीं दिया है, सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ढूंढना है, ठीक है। तो आंसर 9/4 होगा। ओके, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। First we have to simplify. Main motive is to find the multiplicative inverse of this whole thing। हमको क्या करना है, मेन कामটো হৈছে আমাৰ গোটেই বস্তুটোৰ মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্স উলিয়াব লাগে, কিন্তু এনেকৈ ডাইৰেক্ট উলিয়াম কেনেকৈ। তো উই সিম্পলিফাই। অবজাৰ্ভ কৰিলে দেখিবা যে এই দুটা সেম বেছ থাকিলে মাল্টিপ্লিকেশ্যন আছে, ওপৰত পাৱাৰ বেলেগ বেলেগ, কি কৰিব লাগে, এড কৰি দিব লাগে। আৰে ভैया 5/7 ऊपर -2 +4, साइड में 5/7 डिवाइड हो टू दी पावर होल टू दी पावर 3,
कौन सा रूल लग गया भैया, ये वाला रूल लग गया। कौन सा रूल लग गया, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये हो गया a टू द पावर m प्लस n। इधर बेस सेम है, बेस टू की सेम, बेस टू की यार बेस सेम तो होइसे 5/7, m टू की यार m2 होइसे -2, n2 की यार 4, a होइसे 5/7 सेम बेस नो a 5/7 ইয়াত m আছে ইয়াত n আছে ইয়াত -2 আছে ইয়াত 4 আছে মাজত কি আছে মাল্টিপ্লিকেশন সেম বেস ডিফারেন্ট পাওয়ার মাল্টিপ্লিকেশন সাইন উই জাস্ট রাইট দ্য বেস ওয়ান টাইম বেসটো এবাৰ লিখিম ওপৰৰ পাৱাৰগিটা এড কৰি দিম এইটোৱে কৰিছো বেসটো এবাৰ লিখিছো ওপৰৰ পাৱাৰগিটা -2 আৰু 4 এড কৰি দিলো মাই 5/7 এতিয়া আকৌ ইন্টিজাৰৰ এডিशन सबट्रैक्शन জানো নাই জানিব লাগে 2 अगर -4 अगर प्लस 2 के आगे माइनस है 4 के आगे प्लस है माने ऑपोजिट साइंस है दोनों के आगे अगर ऑपोजिट साइंस होता है तो हम क्या करते हैं इन दो नंबर्स को साइंस को नेग्लेक्ट करके इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 का 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा अब देखो जो बड़ा वाला नंबर है 4 और 2 में से बड़ा वाला कौन सा है नंबर 4 है तो 4 के आगे प्लस है तो इसमें प्लस लगा देंगे प्लस नहीं लिखने से भी चल जाता है तो सिर्फ 2 ही रखेंगे ठीक है +2 है मतलब ठीक है अब इधर आ जाएगा डिवाइड 5/7 होल टू द पावर 3 ओहो ये तो 5/7 होल टू द पावर 3 मेरे को ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था वैसे 5/7 2 डिवाइडेड बाय 5/7 होल टू द पावर 3 ये कौन सा फॉर्मूला है ये है हमारा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n तो ये बन गया हमारा 5/7 होल टू द पावर 2 - 3 की फॉर्मूला यूज है कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ इधर यूज हुआ a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n व्हिच विल गिव अस a टू द पावर m - n एरिया आंसर बा কি ওলাব आंसर ওলাব আমাৰ 5/7 হোল টু দি পাৱাৰ 2 - 3 জালম 2 আগত একো নাই মানে কি আছে প্লাস আছে 3 আগত মাইনাস আছে জাস্ট আমি ডিসকাস কৰিছিলো অপোজিট সাইন মিন্স সাবট্ৰেকশন 3 पर 2 सब्ट्रैक्ट करी 1 नापाओ 3 पर 2 सब्ट्रैक्ट करी 1 नापाओ किंतु डांगर तो 3 अगत डांगर बड़ा वाला 3 नंबर है 3 के आगे माइनस है इसमें -1 लग जाएगा इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा 7/5 हो जाएगा होल टू द पावर 1 हो जाएगा उसका मतलब ही 7/5 है भैया तो इनको करते 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 7/5 निकल गया ठीक है अब हमको क्या करना है अब हमको करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7/5 विल बी 5/7 ये 5/7 ही है हमारा आंसर अब देखो अब तुम एक लाइन में कर पाओ आप लोग अगर एक लाइन में कर पाए तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो कैसे देखो तीनों में बेस सेम है 5/7 5/7 5/7 ये मल्टीप्लाई है ये डिवाइड है तो डायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं कि 5/7 सेम बेस पहले ही लिख लिया ये दोनों में मल्टीप्लाई हुआ रखा है इसलिए -2 + 4 अब देखो इसमें डिवाइड है डिवाइड होता है तो क्या होता है पावर का सब्ट्रैक्ट होता है तो इसमें -3 लिख दो ना ये दोनों में से क्या होगा डिवाइड है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 4 - 3 अब क्या होता है देखो इंटीजर्स का अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन याद है तो अच्छी बात है 2 और 3 में सेम साइन है सेम साइन होता है तो हम ऐड करते हैं 2 और 3 में सेम साइन है मतलब हम ऐड करते हैं 2 और 3 को ऐड करके कितना मिलता है 5 मिलता है ना 5 मिलता है और दोनों का क्या साइन है माइनस तो -5 हो जाएगा +4 पहले से ही है तो इधर क्या लिख सकते हैं हम 5/7 होल टू द पावर -1 ठीक है এতিয়া আমি ইয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেল ল'ব লাগে ইয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেলটো হৈছে এইটো 5/7 হোল টু দি পাৱাৰ 1 এইটোৱে আনসাৰ ঠিক আছে এইটো মিনিংটো কি একচুয়ালি 5/7 হোল টু দি পাৱাৰ -1 মিনিংটো কি 7/5 হোল টু দি পাৱাৰ 1 নহয় জানো 7/5 হোল টু দি পাৱাৰ 1 মানে এই গোটেই বস্তুটো কৰি 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 আমি 7/5 পালো ইয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেল লাগে মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্স লাগে ইয়াৰ মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্স হৈছে 5/7 ঠিক আছে ওকে নেক্সট